सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी है चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला ला किनारी कच्ची निकली ढोले दी यारी चिट्टा चोला ला किनारी कच्ची निकली ढोले दी यारी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला लाया माया अज भी जीवन नहीं मिलना आया चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी भाई बड़े बड़े गुलकार बनाए ने अच्छा जी हाँ जी मैं तो जनाब बड़े बड़े गुलकारां ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੋਕੜੀ ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਹ ਅਰੇ ਵਾਹ ਮਾਦਾਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਏ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਨੂਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਡਏ ਓਏ ਰਾਮ ਕਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਣੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਿਹਾ ਸੁਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਾਜੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਗ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਲਕਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਸੇ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਯਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਲਕਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਖਬਰ ਪੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਦਾਰੀਨਾ ਗਾਣੇ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅਰੇ ਕੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਲ ਬਰਸਾਓ ਇਹ ਜੇ ਗਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਲ ਬਰਸਾਓ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਲ ਬਰਸਾਓ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਲ ਬਰਸਾਓ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਲ ਬਰਸਾਓ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਈ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਲਓ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਲ ਬਰਸਾਓ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਾਣਾ ਅੱਗੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਲ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਓਏ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਬਹਾਰੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਲ ਬਰਸਾਓ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਲ ਬਰਸਾਓ ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਾਰੋ ਸੁਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਬਹਾਰੋ ਇਹ ਬੇਟੇ ਬਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਰ ਤੋਂ ਗਈ ਓਏ ਚਲਾ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖਜਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਬਾਹਰ ਓਏ ਦਫਾ ਜਾ ਬਾਹਰ ਚਵਲੇ ਜਾਈਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਜਾਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 7 ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ 7 ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ 7 ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲੀ ਬੀਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲੀ ਬੀਵੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹਾਂਜੀ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਗੁੱਲੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਗੁੱਲੂ ਓਏ ਉਹ ਗੁੱਲੂ ओ गुल्लू क्या बात है गुल्लू को आवाजें मार रहा है तुम क्या बात है गुल्लू बुलाया गुल्ली आ गई और गुल्लू किथे जे रात की ड्यूटी करके आया अभी सोया ही था फिर उसको बुला लिया अभी फिर उसको सुलाया उसको आवाजें दे रहा है तुम ओए इधर आ जा पंजाबी फिल्मां 5-5 बारी मरने वाले आ तेनू मैं क्या गुल्लू नु बुला के लिया भाई गुल्लू नहीं आएगा तुमको पता है ये क्या बैग में क्यों बुलाती है गुल्लू को क्या चक्कर है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁੱਲੂ ਨਾਲ उसको अकेले गुल्लू के साथ ही काम है 7 बीवियों को ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਲੂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ होते कहते हम उसको नहीं बुलाएगा हम उसका शादी करने वाला है उस शादी करेगा उसके बच्चे होंगे उसको पहले चुका रहे हो तुम लोग को क्या बात है करने वाले मैं क्यों नहीं बुलाएगा तू गुल्लू ਨੂੰ ਓਏ ਨਮਕ ਹਰਾਮੋ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ और तुम फिर नमक दे नमक हराम ही रहे हो नमक हरामी का क्या बात है एक दफा काम का मना कर दे तो नमक हरामी हो जाता है और की है देखो हमने उसका बाप है हम उसको नहीं बुलाएगा क्यों नहीं बुलाएगा इसलिए तो उसका शादी करना है उसकी हमने खुशियां देखना है वो शादी करना है शादी 100 बार कर इथों दे काम किने करने ने हां ये कब तक हम सरदारों से डरता रहेगा कोई बात है करने वाला ए जितनी देर तक असि जींदे हैं ना सानू डरना पैना बाबा ये देखो गोट को हमको छोड़ के जाना ही पड़ेगा लगता है हां जाना जुना किधरे नहीं गुल्लू नु बुलाओ नहीं तो मैं मिठे नु बुला लेना मीठा क्या करेगा हमारे साथ मेरे नहीं पता क्या करेगा ज्यादा कुहाड़ियां मारेगा हमारा छोटा छोटा टोटा करेगा टोटा नहीं करेगा बल्कि नाल छोटा छोटा भी करेगा समझ आइए हम नहीं सरदारों से डरता हम तुमको बता रहा है ये गल सरदार दे मुंह ते कहेगा मुंह से नहीं कहेगा हम तू उन गुल्लू नु बुलाना है कि नहीं देखो अगर वो उठ गया है तो हम उसको बुलाएगा वरना गुल्लू को नहीं भेजेगा जाओ सब बेगमात को बता दो तू जा हमारा मैं बुलाना मिठे नु जाओ मिठे को बुलाओ जिसको मिठे को बुलाओ नहीं हम नहीं बुलाएंगे ओ मिठे To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the क्यों अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम चंगियां भलियां अंदर बैठियां होंदियां ने गाना लगदा पता नहीं केड़ी इन्हां दे अंदर शै खलोंदी है अल्लाह उत्ते डोरियां नाल ही भजन फिरन लग पैंदियां ते तेनू की तकलीफ है ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ मेरी जान ਮੰਨ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਡੋਰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ की है ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਈ क्यों ਹੈ मैं नहीं आ सकती मैं डिग पैनी हां ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆਉਣਾ। ਆਉਣੀ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਗਾ मिठे साल दा तेनू डर है मेनू नहीं है ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਣੀਓ ਡਰਿਆ ਕਰੋ मैं ਉਹ नहीं ਡਰ- मैं नहीं डरती ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ मैं ਤੂੰ तेरे नाल प्यार करनी हां ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਏ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਏ वे नजीरिया ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਏ मेरी आंखों च वेख तेनू की नजर पे आंदा है ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6-700 ਦੀ ਪਟੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ मैं नहीं सकती ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ओ क्यों ਮਿੱਠੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਸਾਈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ते मिठे साई नु मैं आप ही ਉਹ संभाल ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ओ ते जबरदस्ती हो गया ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਏ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਾਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਫੜੇਗਾ ਆ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਏਗਾ ਚੁਗਲੀ ਆ ਲਾਏਗਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਚੁਗਲੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਲਾ ਓ ਮਿੱਠੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਦੱਸ ਓਏ ਓਏ ਮਿੱਠਿਆ ਆ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ
ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਗਰਦਨ ਲਾਉਣੀ? ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਬੁੱਢੀ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਓ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਚਵਲਾ ਜਹਾਨ ਦੇ ਆ, ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਹੋ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾ, ਲੰਗੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਚਿੱਟੀਏ ਮਰਾਸਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਏ? ਬਾਹਰ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਆਈ ਏ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕੁੱਤਿਆ ਕਮੀਨਿਆ ਜ਼ਲੀਲਾ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਭਲਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਓ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ। ਓਏ ਖਲੋ ਜਾ, ਕਹਾ ਹੋਇਆ ਸਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਹਾਂਜੀ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੱਧ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਨਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਾ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਚਿੱਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਿਦੋਂ ਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਰਵੱਟੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਬਰਾਉਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਉਨ ਨੇ। ਬਰਾਉਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਹਰ ਉਹ ਵੀ ਜਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਡੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਇੰਜ ਸੀ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ? ਕਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਮਲਕਾ ਲੋ, ਐ ਲਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦੱਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਲਾਈਆਂ ਲੋ। ਉਹ ਛਲਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਮਾਰੇ। ਸ਼ੇਖਾਂ ਲੋ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੈਂ? ਸ਼ੇਖਾਂ ਲੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਡਈ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਘਰ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨਾ। ਓਏ ਮਰੀ 2 ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਮਰੇ ਚੋਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ। ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਗਾ। ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂ ਲੋ। ਗੁਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਖੌਰੇ ਚੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਜਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਝ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਸੰਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਓਏ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਰਾਣਿਆਂ ਲੋ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਬਣਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? 1 ਮਹੀਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਰਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਇਆ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਇਆ? ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ ਆ ਕਰਨੀ ਚੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੱਲ ਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਚੱਲ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਈ। ਜੀ ਬੀਬੀ। जीरो साईं जी बीबी जी। कहाँ मर गया था तू? मैं इतने ही था जी। तुझे मैं सुबह की उठा रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रही? तुझे आवाज़ा दे रही थी। तू ही उठा रहे था? जी हाँ, नहीं मिल नहीं पता लगा। सुबह की तुझे उठा रही हूँ, मैं उठे तो पे बीबी जी। पता नहीं है तुझे? नहीं जी। अब मैं बताती हूँ, जल्दी से जाओ और गुल्लू को बुला के लाओ। बीबी जी की कहना है गुल्लू नू? उसे कहना बड़ी बेगम का काम है, जल्दी से मेरे कमरे में आए। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁੱਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੰਮ। तू नहीं कर सकता, गुल्लू ऐसे काम करता है ऐसे। ਓਏ ਐਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ? क्या मतलब? ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? बकवास बंद करो। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? गुल्लू
गुल्लू बहुत अच्छे से काम करता है। ਉਹ ਅੱਛੇ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੀ ਗੁੱਲੂ ਗੁੱਲੂ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ मेरी बात सुन, मेरे से अलावा किसी के कहने नहीं लगना। और गुल्लू को नहीं बुलाना, कोई भी कहे, सिर्फ जब मैं कहूँ तब गुल्लू को बुलाना है। ਅੱਛਾ ਜੀ अब जाओ जल्दी से, ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ गुल्लू को बुलाओ। ਚਲੋ ਬੁਲਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇकुम सलाम ਬੀਬੀ ਜੀ नजीरू, जी कहाँ बीबी मर गए थे तुम? ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ सुबह मैंने तुम्हें किस लिए उठाया था? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ तुम्हें मैंने कहा था जाकर गुल्लू को बुला कर लाओ। ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੇ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ मुझे गुल्लू से जरूरी काम है और वो काम सिर्फ गुल्लू कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤੇ ਲਾਓ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ तुम्हें कहा है जाकर गुल्लू को बुला कर लाओ। जीरू, ਹਾਂਜੀ इधर आ। इस वेली की बड़ी मालकन कौन है? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ बस जल्दी से जाओ, मेरा नाम लो, जल्दी से लेकर आओ गुल्लू को। अच्छा गुल्लू, ਹਾਂਜੀ नजीरू, जी बीबी। इस हवेली की छोटी मालकिन कौन ਉਹ है? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ तो जाकर गुल्लू से कहो कि छोटी मालकिन बुला रही ਹਾਂ है। ਛੋਟੀ ਮਾਲਕਨ ਬੁਲਾ बड़ी मालकन बुला रही है। छोटी, बड़ी, ਵੱਡੀ छोटी, बड़ी, ਵੱਡੀ छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी। ਬਸ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਆ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਲੂ 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 ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਲੂ 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 ਸਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਲੂ ये ਕੀ ਹੈ जीरू, ਗੁੱਲੂ ਆ ਗੁੱਲੂ गुल्लू सारे काम कर सकता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ सही करना ਕੀ ਹੈ ए नजीरू, ਹਾਂਜੀ रोना धोना हो गया। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ अब जल्दी से जाओ गुल्लू को बुला के लो। उसे कहना छोटी मालकिन बुला उसे रही कहना है। बड़ी मालकन बुला रही है। छोटी, बड़ी, ਉਹ ਬਸ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ हाँ, ਤੇ ਗੁੱਲੂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ हाँ। बकवास बंद करो, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ गुल्लू को बुला के लो। ਗੁੱਲੂ अरे कौन है बाबा? अभी सोए अभी आकर गुलू गुलू करना शुरू कर दिया है। ਬਾਹਰ ਆ बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ अरे बाबा इनको बताने की क्या जरूरत है? गोट की सब औरतें जानता है। हम गुल्लू है बाबा। गुल्लू को कौन नहीं जानता है? हर काम ऐसे करता है। आपको तो पता है मालकन सारा फिर बाबा चुप कर जाते रहिए, हमें लगता है बाबा छोड़ दो बाबा। गुल्लू, सुबह से मैं अपने कमरे में तुझे बुला रही हूँ, तुम क्यों नहीं आए? बाबा आया था कमरे में, बाबा पहुंचा था कमरे में, उधर आया है, अंदर से कुंडा लगा है, अब दरवाजा फाड़ कर लंघ जाए बाबा। हम सुलेमान खान है कि दुल्लू है? बकवास बंद करो गुल्लू, जब भी मैं कहूँ जल्दी से मेरे कमरे में आया करो। बाबा उधर छोटी मालकन भी बुलाता है, तुम्हें भी बुलाता है, दरमियान वाली भी बुलाता है, ऊपर वाली भी बुलाता है, नीचे वाली भी बुलाता है। अब सब औरतें हमको बुलाता है, हम किस किस का काम करें इधर बाबा? एक काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट भी होता है। गुल्लू, हद हो गया है। और किसी का काम मत किया करो, उसके बाद मेरा जब काम करते हो तुम थक जाते हो। मुझको कसम उठवा लो पैदा करने वाले की, क्या? तुम्हारा काम करने के बाद थकता है। इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है, पूरा ही नहीं होता है। तुम्हारा काम करना भी ऐसा ही है जैसा दरिया का एक किनारा पार कर कर दूसरे के किनारे पे जाना है। नीचे पानी पानी होता है, पानी पानी होता है। गुल्लू, बकवास बंद करो, चलो मेरे कमरे में। चलो मेरे कमरे में। चलो, काम है तुझसे। नौकर है बाबा, तुम्हारा जैसा काम देगा कर देता है। चलो फिर। हद हो गया है। गुल्लू, तुम्हें मैं नजर नहीं आ रही? अरे बाबा तुम तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है, अल्लाह ने कर्म किया हुआ है। तो तुम्हें सुबह से मैं ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ थे? बाबा इधर रात भी काम कर कर अभी जाकर सोया ही है, तो वो आवाजें दे रहा है गुल्लू गुल्लू। आ गया है, बताओ बाबा
तुम्हें पता है ना, मैं अपने सारे काम तुमसे करवाती हूँ। बाबा सारे तो करता है, एक दो काम तुम खुद भी करता है, वो हम पे ना डालो बाबा। होता है बाबा, होता है, तुम लोगों को नहीं पता है सुबह सुबह क्या होता है। तुम्हें पता है मैं अपना काम सिर्फ तुमसे करवाती हूँ। बाबा वो हमको पता है, अब हम पे इत्तेमाद करता है, हम तुम्हारा अच्छा नौकर है, तुम हमसे काम करवाता है। अब क्या काम है बाबा वो बताओ बाबा। तुम कहाँ चली गई? सुबह से तुम्हें मैं ढूंढ रही थी। बाबा हम आगे आए, कितना प्यारा अल्लाह ने तुमको हुस्न दिया है बेगम हाँ जी साहबा जी। तो गुल्लू चलो मेरे कमरे में। कितना प्यारा नाम तुम लेता है, इसको तुम्हारा नाम लेना तो आता बड़ी बेगम को। हाँ। तुम कितने प्यार से कहता है गुलू, हमारे से दुनी का वट खुल जाता है। बाबा फिर एक दफा कहना गुलू। गुल्लू अब मैं सच के जावा कितना गोल मुंह हो जाता है। हाँ। गुलू अरे वारे अब बीबी आप क्या कर दिखाओ बाबा। क्या? वही गुलू। गुल्लू अरे बाबा क्या कर रहा है, हाथ हो गया है? गुलू कहना है, गुलू निकालना नहीं है इधर। कैसे कहना बताओ मुझे। कैसे कहना है, इतने प्यारे से वो कह रहे हैं, पढ़ा लिखा लोग इधर से पता चल जाता है। माशाल्लाह पर्सनालिटी भी बता रहा है और बातचीत भी अच्छा है, लेकिन गुल्लू अच्छा कहता है। गुल्लू बाबा एकदम नहीं कहता है, आराम से कहता है। हाँ। गुल्लू किसी को इज्जत दो फिर वो पास आता है। गुल्लू आज वैसे बाबा तुम भी कह सकता है। कैसे? तुम बोलो आराम से कह रहे गु कैसे? बाबा नीचे वाला होंठ ढीला छोड़ दो ना। हाँ थल्लेड़ा जरा छोटे के। बकवास बंद करो। चलो, कैसे कैसे? बाबा आप भी सीख लो। हाँ अल्लाह बाबा आपकी अल्लाह जिंदगी करे बपर शेर, तुम नस्वार भी रखो, औलाद भी रखो, इजी होकर बैठो। इधर हमारा मान भी रखो बाबा। इधर देखो ना कौन सा मुश्किल में पड़ा हुआ है, गुल्लू निकल रहा है इजी होकर बाबा। कितना मजा आता है बाबा। चलो बाबा करो। गु गु बाबा बुल ढीला छोड़ना है, बुल ढीला छोड़ना है, किसी जगह पे तो छोड़ो। कैसे? गु गु बीबी आप भी कर कर दिखाओ ना हल्का से, वो आप लोगों को देखने आया है। हाँ हाँ। गु गु होठ को उठाना है। वो फटाफट करो, मेरी धुनी खींची जान रही। चलो कर चल रहा। होने लगा बाबा। हाँ। बोलो गु गु पीछे से जोर लगाना है। लू गुलू मैं तो ठीक करती हूँ ना। बाबा आप हर काम ठीक करता है। तो गुल्लू चलो पहले मेरा काम पहले करो। मेरा काम। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਓ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 7-8 ਗੁੱਲੂ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। चुप रहो। ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। चलो गुल्लू मेरे कमरे में। सच्चा भाई बड़ा काम होता है। गुल्लू पहले मेरा काम। ठीक है गुल्लू बाबा। पहले मेरा काम। ठीक है पहले बाबा। मेरा काम। मेरा काम। ठीक है मेरा बाबा। काम। मेरा काम। कर देता है, मेरा काम। कर देता है बाबा, कर देता है। मेरा। अरे कर देता है बाबा। अरे बस कर दो बाबा इधर। आज हम अकेला मर्द तुम दोनों का काम कर देता है। बताओ क्या क्या काम है इधर। आज तुम हमको समी समझो बाबा। एक मर्द दो औरतों का काम कैसे कर सकते हैं? बाबा जैसे एक औरत दो मर्दों का काम कर देता है, हांडी भी पका लेता है, आटा भी गूंद लेता है। जीरू हाँ वो जी कैसे? एक औरत दो मर्दों का काम कैसे करती है? कर लेंदी है। वो कैसे? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਾਂਗਾ। अन्नी माँ के बच्चे, तुमने तो कहा था मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा मेरी वीडियो। चलो गुल्लू मेरे कमरे में। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਖਦਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। बकवास बंद करो। हद होता है। गुल्लू जी बाबा। इस हवेली की सबसे छोटी और लाडली मालकिन कौन है? बाबा आप ही छोटी है, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ तो उम्र पहले, से इतना डेट, बस छोड़ दो बाबा, आप बड़ा है छोटा है। हाँ तो पहले मेरा काम करो। ठीक है, आप क्या करता है बाबा? इस हवेली के बड़ी मालकन कौन है? आप है बाबा। तो फिर पहले मेरा काम करो। पहले मेरा काम। पहले मेरा। ਉਹ ਬਸ ਮੇਰਾ 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 ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਗੁੱਲੂ ਗੁੱਲੂ ਲਾਈ ਏ ਉਹ ਗੁੱਲੂ बाबा आप चुप कर जाओ, हम मर्दों का काम नहीं करता है। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਂ ਨਿਬੇੜਨਗੇ ਸਮਝ ਆਈ ਏ ਗੁੱਲੂ ਗੁੱਲੂ ਲਾਈ ਏ बुलाओ। ਵੱਡੇ ਸਾਈਂ रे बाबा चरिया हो गया है बड़ी साईं। हमने बोला था बाबा, पूरी गोट में ऐलान किया था कि हमारे गोट में और हमारी हवेली में कोई हमसे ऊंची आवाज में बाबा बात नहीं करेगा।
तू चिल्ला रहा है सरदार का हुक्म ना मानने का, तू सजा बहुत अच्छी तरह जानता है बाबा। ओए हमारी कोर्ट में तो बाबा चिड़िया हमारी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता, तुमने कैसे हुक्म अदूली किया बाबा? माफ कर दो साईं, बस थोड़ा सा आवाज ऊंचा हो गया साईं, माफ कर दो। चलो माफ किया बाबा, आइंदा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए बाबा। नहीं सही। चिल्ला क्यों रहा था बाबा? सही वो बड़ी बीबी याद करते हैं भाई। अरे क्या बात है बाबा, हमारा बड़ा बेगम इधर खड़ा है, खैर तो है, मुंह लटकाया है बाबा। सरदार साईं, ये जो है ना गुल्लू, ये मेरा कहना ही नहीं मानता, कोई भी काम नहीं करता। इसका जरूरत है? ओए नमक हराम हो गया है बाबा। अरे बाप दादा से हमारा जर खरीद गुलाम है, हम कहे तो दिन है तो दिन है, हम कहे रात है तो रात है, और तूने बड़ी माल करके काम करने से इनकार कर दिया बाबा। कोई भी ऐसा बात नहीं है सही, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इधर सारे काम गुल्लू ही करते हैं बाबा। आपकी बड़ी बेगम का काम भी गुल्लू करता है, आपकी छोटी बेगम का काम भी गुल्लू करता है, आपकी दरमियानी वाली बेगम का काम भी गुल्लू करता है, आपकी नीचे वाली बेगम का काम भी गुल्लू करता है, ऊपर वाली का काम भी गुल्लू करता है बाबा। यहाँ तो आपका काम भी तो गुल्लू ही करता है। बाबा कैसे नहीं मेरा काम करेगा, हमने बचपन में तुम्हारा काम किया बाबा। मुलाजमत देने वाला बाबा, मुलाजमत दिया है। तुमको यही बताया है मुलाजमत है। आज के बाद ध्यान रखना बाबा, बड़ी सहन है तुम्हारी, उसका काम करना तुम्हारा फर्ज है बाबा। ठीक है बाबा। हमने कह दिया है आज के बाद ये ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। अब क्यों मुंह लटकाया है भाई? मैं आपसे नाराज हूँ साईं। अब क्या हुआ बाबा? आप भूल गए हैं कि पूरी कोर्ट का वारिस मैंने तुझे दिया है, आप फिर भी मेरे कमरे में 8-8 दिन आते ही नहीं हो। अब तेरे कमरे में आने का क्या फायदा बाबा, डेट एक्सपायर हो चुका है तू। सरदार दीवारों में टकरे नहीं मारता बाबा। बड़ा सही, आप भूल गए हो कि सबसे पहले मैं आपकी बड़ी बेगम हूँ और आपकी पहली मोहब्बत भी। बाबा तुम्हारे अलावा 6 बीवी मेरा और भी है, वो भी हमारा मोहब्बत है। कुछ अकल को हाथ मारो, अल्लाह अल्लाह किया करो बस, अब छोड़ दो और दिनों में। और क्यों चल रहा था भाई? बाबा ये छोटी बीबी भी आया। अरे बाबा कम वक्त मारा, हमको बताया ही नहीं, हमारा सबसे प्यारा लाडला खूबसूरत बीवी इधर खड़ा है और हमें पता ही नहीं। हमने पूरा हवेली में बाबा आपको ढूंढा, और तो और तुम्हारे कमरे में भी गया था, उधर भी तुम नहीं है, तुम इधर खड़ा है बाबा। खैर तो है? मैं आपसे नाराज हूँ। क्या हुआ बाबा? ये गुल्लू आपकी बड़ी बेगम का भी काम करता है, उससे छोटी का भी करता है, उससे छोटी का भी करता है, एक मेरा ही काम नहीं करता। वाह गुल्लू साईं वाह, सारी बेगमों का काम तू करता है तो हम सरदार मैंगो लेने के लिए बनाए बाबा। ऐसा कोई भी बात नहीं है बाबा। नमक हरामी कर रहा है बाबा, इनका काम करना ये तुम्हारी मालकिन है, सरदार नहीं है तुम्हारी, इनका काम करना तुम पे फर्ज है। वैसे भी सरदार की बीवी माँ जैसी होती है, बल्कि माँ होती है। लानत पाओ इस काम ते। कुछ बोला गुल्लू साई? नहीं बाबा साईं, हम तो कुछ भी नहीं बोला। हमने कह दिया इसका जरूरत है कि तुम्हारा काम ना करे। अब क्यों मुंह लटकाया है बाबा? अभी भी नाराज हूँ आपसे। अब क्या हुआ बाबा? 3 महीने हो गए हमारी शादी को। हाँ बाबा। आप हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मुझे देते हैं, वो भी जुमेरात का। सरदार मजबूर है बाबा, 6 बीवी हैं और भी हैं, उनका भी लोड हमारे कांधों पे है बाबा, क्या करे? लेकिन मैं तो सबसे लाडली बीवी हूँ ना। ये तो पूरा कोर्ट जानता है कि हमारी मोहब्बत आखिरी तुम हो, हमारी कोर्ट में सबसे प्यारी बीवी तुम हो। तो आपसे एक फरमाइश करूं? बोलो बाबा। जुमेरात का दिन आप मुझे देते हैं। हाँ बाबा। तो हफ्ते के दिन कहाँ होते हैं? इस बुढ़ड़ औरत के पास होता है, देखती देखो कैसे है। और इतवार का दिन? इतवार का दिन इससे छोटी बीवी के पास होता है बाबा। फिर पीर आ जाते हैं। तोबा मेरी या अल्लाह, पागल हो गई है तुम। अरे बाबा पीर जो होता है वो पीर फकीर वाला दिन होता है, पीर को सलाम करके तीसरी बीवी के पास जाता है बाबा। तो मंगल कहाँ जाएगा? मंगल को नगा होता है, पागल हो गए हो तुम। मंगल वाले दिन चौथी बीवी के पास होता है। और बुध का दिन? बुध वाला दिन तो काम शुद्ध होता है बाबा, वो नौकर को देता है। और जुमेरात?
अरे बाबा जुमेरात तो पहले ही तुम्हारा है, क्या हो गया है तुमको आज? तो जुम्मा कहाँ जाएगा? बहुत अच्छे बाबा, इतनी ड्यूटी करके बंदा एक छुट्टी भी ना करे तो क्या करे बाबा, मर जाए शहादत दे दे। मैं आपसे एक फरमाइश करूं? क्या बाबा? जुम्मे का दिन भी आप मुझे दे दे। चलो तुम्हारे भाई ने बोला है, दे देता है बाबा। अब इतना बड़ा फरमाइश आया है, वलीमे वाले दिन नाश्ता भी बेचारा लेके आया था, जाओ तुम्हारे कहने पे तुम्हारी बहन को दे दिया बाबा, दे दिया। खुश हो जा बाबा। काका फिर भी गोट का लोग है, हमारी इज्जत करता है, हमें इनका बात मानना पड़ता है बाबा। जुम्मा मुझे दिया? जाओ, क्या याद करोगी? जुम्मा भी तुमको दिया बाबा, हाँ। और जुम्मा भी तुमको दिया बाबा। शुक्र है जुम्मा भी उधर देता, साड़ी जान तो छुट्टी। कुछ बोला गुल्लू साईं? नहीं बाबा साईं। आजकल कुछ ज्यादा बुड़बुड़ कर रहा है बाबा तू। नहीं बाबा, इधर वो है मेरा मुंह सरदार दोस्त मोहम्मद चांडियो नाम है हमारा बाबा, पता है 7 पुश्तों से इधर गोट का मालिक है, अपनी औकात में रह कर बाबा। सच बोला बाबा। जाओ जाके अंदर तैयारी पकड़ो, आज जुमा है, आज से ही काम शुरू करता है बाबा। जी। अपना नौकर साईं जी बड़ा साईं, तुम्हारे सामने तुम्हारी छोटी बीबी को हमने जुम्मा भी दे दिया। दे दिया दे दिया। तलोर 2 की जगह 3 कर दो बाबा। 3 तलोर? बाबा 3 तलोर। अब फिर मुंह लटकाया है सुबह सुबह। बड़ा साहिब, आपने 2 दिन उसको दिया, जुम्मा भी उसको दे दिया, कम से कम जुम्मा तो मुझे दो ना। वो पंजाबी का मसाल है ना, कौन सा बाबा? कि हराम दी औरत और तेल का उजाड़ बाबा, ये वो हो गया है। बाबा ये आपकी बीवी आपको बहुत तंग करती है बाबा, आपको 24 घंटे नाराज करती है आपकी ये वाली बीवी, इसको सजा दो बाबा। वो क्या बाबा? इसको OLX पे लगा दो बाबा। ये क्या होता है बाबा? अच्छा अच्छा, ये वही है ना जिसपे तुमने अपनी माँ को लगाया था? बाबा जॉब कर रही है। छोड़ो बाबा इन बातों को, तुम्हारा बाप गुलामू आजकल नजर नहीं आता, वो हमारा बाप दादा से जर खरीद गुलाम है, फसल मसल का ध्यान रखता है कि नहीं बाबा? बाबा पानी मानी लगाता है कि नहीं? बाबा साईं बेफिक्र हो जाए आप, हमारा बाप तो घर में रहता ही नहीं है, 24 घंटे आपकी फसलों में होता है बाबा। उधर हमारा बाप 24 घंटे फसलों को पानी लगाता है बाबा, सुबह भी लगाता है, दोपहर को भी लगाता है, शाम को भी लगाता है बाबा, कतरा कतरा पसीने का भी जमीन में लगा दिया है उसने बाबा। बाबा कैसे नहीं लगाएगा, तू खून भी लगाए तो फिर भी कम है। मेरा बात सुनो बाबा, अगर तुम्हारा बाप घर पे है तो उसको बुलाओ, क्या बड़ा सरदार बुलाता है उसे। घर पे ये बाबा, उसको तो बाहर कोई निकलने नहीं देता है। अब्बा साईं, अब्बा साईं, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਗੀ ਤੈਨੂੰ ਓਏ अब्बा ऐसे ही उठता है। ਦੋਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਤ ਲੱਤ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ 2 ਘੜੀ ਸਕੂਲ ਕਰ ਲੈ ਸਾਲਿਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अब्बा साईं आहिस्ता में बात ਤਾਂ करो। ਸਾਲਿਆ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਆ क्या बोल रहा है इधर? हैं? सरदार सरदार ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਥਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਸਾਲਿਆ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ अब्बा साईं पीछे देखो पीछे। ਪਿੱਛੇ ਸਾਲੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਤਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੂੰ अब्बा ਘਟਨਾ ਹੋ साईं, ਜਾਏ खुद भी मरोगे मुझको भी मरवाओगे बाबा। ਤੂੰ ਮਰਵਾਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ बड़ा साईं, बड़ा ਉਹ साईं, ਬੜਾ ਸਾਈ ਸਾਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ बड़ा साईं। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਦਾ ਕਾਦੇ ਸਿਮਰ ਦੇ ਮਾਲ ਚ ਕਿਹਦਾ ਸਾਲਿਆ ਬੜਾ ਸਾਈ सरदार सरदार हैं? सरदार बड़ा सरदार। ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਲਿਆ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਵਾ 5 ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਆ ਕਿਉਂ ਸਰਦਾਰ ਆ अब्बा ਇਹ ਕੋਈ साईं, ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ अब्बा साईं, बड़ा साईं भी- ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਈ ਸਾਲੇ ਕਿੱਡਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੂਲੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਬੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ बात तो ठीक करता है कंजर। अब्बा हाँ। अब्बा साईं, ਓਏ ਅੱਬੂ ਸਾਈ ਕੀ ਜਾ सरदार ਹੈ सरदार सरदार सरदार। ਸਾਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ 7 बेगम है बाबा उसकी, 2 ਬੱਚੇ 2 बच्चे। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 7 ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਦਿਓ ਆ ਹੈ ਲੂਦਾ ਪੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਲਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ
मैं नौकर खादम हूं। हमने सब सुन लिया है। सरदार का बोली कुत्ते जैसा मुंह है और तुम ये भी बोल रहा था बाबा कि वो 2 रोटी खाता है और हम 5 रोटी खाता है, और सीना ठोक के ये भी बोल रहा था कि उसका 7 बीवी में से सिर्फ 2 बच्चा है और हमारा 1 बीवी में से 7 बच्चा है। ये किस कंजर ने बोला है? ये इस गैर मजहबी कंजर ने बोला है बाबा। अच्छा मैंने बोला है? हाँ मेरे को बच्चा 7 है तुम्हारा। वाह बाबा। ले मेरी बात सुने। सही 7 बच्चे हैं तो वो भी तो आपके ही है ना। हमें पहले ही शक है बाबा, इसका नया नक्श तो वैसे ही हमसे मिलता है। हेलो तुसी काम ठेके ते दे लो। सही मेरे तो 2 ही हैं, बाकी तो सारा मिलजुल के काम हुआ है ना। अच्छा बाबा सब गोट में खाए रहे ना जी। फसल मसल में ठीक काम चल रहा है ना? चल तो ठीक है। आज दोस्तों ध्यान पड़ गया है, अब बात करो बाबा। कुड़बुड़ हो रहा था इधर। भाई दफा हो। उधर कोई शर्म है कि नहीं तेनू? शर्म है कि नहीं तेनू है? तू ना बदतमीजी करदा बगैर ते तेनू हिया ही नहीं। कंनी दिया ए प्यो ही हुंदा है बगैर तो जेड़ा औलाद नू गिली जगह चुक के सुकी जगह ने पा के आप जाके मां ना पै जांदा। चल दफा अंदर। उधर सुनदा नहीं है। उधर सुनदा नहीं है। अच्छा जो मैं कहूंगा वही कहेगा। जो मैं कहेगा वही कहेगा। बता है खोते दा बच्चा। अब भाई ऐसे पता करना सी। अब्बा साई To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the ये जो सलामे सलामे करे इसको छोड़ो इधर। भाई के साथ बेइंसाफी करता है। मैंने क्या कर दिया? इतना चीख क्यों रहे हो तुम? चीख क्यों रहे हो? उधर मुझको सूखी रोटी खिला रहा है और मक्खन का पेड़ा खुद खा रहा है। हाँ वो तो अब्बा सही ने हमें कहा था कि मक्खन का पेड़ा तुम खाया करो और सूखी रोटियां इस पागल को दिया करो। हम इधर हमको मक्खन की जरूरत है बाबा, खुद खा रहा है। इधर तुम्हारा भाई पूरी हवेली का काम करता है। अच्छा सुबह से लेकर शाम तक इधर काम कर करके पाव होता है। एक घुटनों में से आवाज आता है कोई अंदर चिकनाहट जाना चाहिए बाबा। ऐसा कौन सा काम करते जो तुम्हारे घुटनों में ताकत नहीं है? बाबा सारा काम करता है बड़ी बेगम। कौन से काम करते हो? अब तुम बहन लगता है, तुम्हें कैसे समझाए? इधर सारा झाड़ू पूंजू हम करता है। एक ही मक्खन का पेड़ा बचता है, वो भी अब्बा सही अपने सरदार साहब को खिला देते हैं और पीछे कुछ नहीं बचता। अब मेरे लिए कुछ खाने के लिए रखा है कि मैं बस इधर तुम्हारा सर खाता रहूं बैठकर? चलो जाओ मेरे सामने मक्खन का पेड़ा पड़े उठा के खा लो। किधर पड़ा है सामने? वो सामने नजर नहीं आ रहा तुम्हें? कुत्ता बंधा हुआ है। वो तो कुत्ता बंधा हुआ बाबा। हाँ तो कुत्ते के साथ खा लो। तुम में और कुत्ते में क्या फर्क है? अब हमें कुत्ते के साथ ही रोटी खाएगा, बस हमारी भी जिद है। अब हम कुत्ते के साथ ही रोटी खाएगा। हाँ तो खाओ। बात तुम्हें कह रहा हूँ, उधर कह सकता है? पता होना एडा हराम दा जमुना में ठुडा मार देना। सलाम अब्बा सही अंदर है। मेरे माँ ने रोटी बनाई हुई, आके खा लो। रोटी बनाया है? हाँ। कितना रोटी बनाया है बाबा? मैंने 21 रोटी बनाया है। 21 रोटी बनाई है? हाँ। डंगर समझती है मेरे को, जानवर हूं मैं। नहीं 21 रोटी बनाई है? हाँ। ऊपर वाली एक उठाओ, 20 खाता हूं मैं। तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है अब्बा साई। 1000 मर्तबा बोला है जब बड़ा सही बार खड़ा हो ना तो ध्यान से बाहर निकला करो। हाय मैं मर गई। ये बड़ा साई अब्बा। और चुगल को रूट है। चलो मुझे नहीं पता था वो बड़े साई है। मैं अंदर जा रही हूँ। चलो जरा। ठहर जाओ लड़की, ठहर जाओ बाबा। किधर जाती है किधर? अरे वाह गुलाम हुसैन, डाडो सुठो पीस है बाबा। अपना गोट का तो नहीं लगता बाबा, बड़ा सही अपने गोट किया है, लेकिन पहले कभी इसको गोट में नहीं देखा बाबा। वो हमारा बेटी है बड़ा सरकार। अरे बाबा तुम्हारा बेटी है? अरे किधर छुपा के रखा है चरिया? अरे गोदड़ी में लाल छुपा रखा है। अरे गोदड़ी में लाल। आपकी बेटी की उम्र की है बड़ा सही। तेरे कहने का मतलब है कि इसका उम्र हमारी बेटी के उम्र का बराबर है, तो हम इसको भी अपना बेटी मान ले? चरिया हो गया है, पागल हो गया है। वरी साईं, सरदार की बेटी का मुकद्दर कुछ और होता है और हारी की बेटी का मुकद्दर कुछ और होता है। ये 7 मर्तबा दोबारा जन्म भी लेकर आए
तो सरदार की बेटी के मुकद्दर के बराबर इसका मुकद्दर नहीं हो सकता बाबा। छोड़ो, तेरा बाप तो पागल हो गया है। नाम क्या है तेरा बाबा? हमारा नाम रेशमा है। अरे बाबा, तेरे बाप ने तो नाम भी मेरी पसंद का रखा है, रेशमा। आप भी अपनी बेटी का यही रखना चाहते थे? अरे चिड़िया पागल है। अरे बड़ी सही, क्या बात है। ओए, नाम तो दिल में उतरने वाला रखा है रेशमा। ये तेरी बेटी का ही होना चाहिए था बाबा। आप हमारे इलाके के बड़े हैं सरदार साहब, और बड़े हमेशा माँ बाप की जगह होते हैं, और आपको ऐसी हरकतें और ऐसे बातें करना जेब नहीं देती। दोनों बाप बेटी पागल हो गया है। अरे तुम्हारा माँ बाप जिंदा है, सिर्फ माँ ही मरी है ना, बाप तो तुम्हारा जिंदा है। तुम्हें तो इस वक्त खामद की जरूरत है बाबा। इस भरपूर जवानी में खामद की जरूरत पड़ जाती है बाबा। अभी हम इसका रिश्ता देख रहे हैं बड़ा सही। जैसे कोई रिश्ता अच्छा लगेगा हम इसका रिश्ता तय कर देगा। और आप तो हमारी गोट के वडेरे है ना, आप अपने हाथों से इसको रुखसत करेंगे। अरे पागल हो गया है। रुखसत तो उसको किया जाता है बाबा जिसकी घर में जरूरत पूरी ना हो। क्यों से? भला आप इस उम्र में मेरी जरूरतें क्या पूरी करेंगे सरदार साहब? अरे तुम नहीं जानती, ये सरदार दोस्त मोहम्मद चांडियो है। इस उम्र में भी तुम्हारा ऐसा जरूरत पूरी करेगा कि कभी जरूरत को भी किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा बाबा। जरूरत खत्म नहीं होती सरदार साहब, इंसान खत्म हो जाते हैं। वो इंसान होता है जो खत्म हो जाता है। ये तो सरदार दोस्त मोहम्मद चांडियो है, चांडियो। अरे गुलामों, जी सरकार। अपनी बेटी का रिश्ता तो नहीं किया बाबा कहीं? इधर उधर से रिश्ते तो बहुत होता है बड़ा सही, और भी फैसला नहीं किया। फैसला मेरे पूछे बगैर करना भी नहीं बाबा। हम तुमको बताएगा कि इस बुलबुल का घोंसला किधर बनाना है बाबा, किधर बनाना है। ये कटेल बढ़ गया। ठंड पै गई हूँ। एडा सोहना सा कोई नहीं, पहली नु 1750 की कमेटी नहीं कर रही मेरी। रेशमा की है? तेरी तो हम साडे सरदार दे तो लिखी गई। तू फिकर ना कर, तेरी सरदार दी हुन रेशमा दे हत्थों लिखी गई है, ते मैं ओनु पानी पिया पिया के मारांगी। पानी पिया पिया के? हाँ। ओए वो ते पानी पींदा ही नहीं, ते दुध पींदा दुध। दुध पींदा? ते तू किन्ना क पिया लेंगी? तू फिकर ना कर, मैं ओनु दुध भी पियावांगी, नाले विच नीला थोथा पा पा के। ओ नीला तोता ना पियाई। क्यों? ओ नीला तोता पी गए ते होर सीधा हो जांदे। सीधा? एक नीला तोता हाँ। ते दूजी नीली गोली। ਜਦੋਂ ਖਾ ਲਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ सीधा ਸਿੱਧਾ अल्लाह कौन? ਆਹੋ ਨੀਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਤੇ ਨੀਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡਣਗੇ। ए लोकी मेरी गल सुन ले कान खोल के। हाँ जी। ए नीला तोता ते नीली गोली लोकी खाणगे तां भी मरणगे, जे नहीं खाणगे तां भी मरणगे। जा अपना काम कर, मेरे मुंह ना लग। ਮਰਨਾ ਤੇ ਆਈ ਨੀਲੀ ਗੋਲੀ ਦਿਖਾਓ। ਓਏ ਮਿੱਠੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਅਜੇ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਤੀ ਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਓਏ? ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਾਲਣ ਨਾਲ 9 ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਈ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ? ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੱਦ ਲੈ। ਕਿਉਂ? ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਾਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਈਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਗਰੀਬ ਬਖਸ਼ਾ ਗੱਭਰੂ। ਓਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? क्यों एक आवाज से बाहर आए? ਹਾਂ तू साला साडा चवल जेड़ा जोज मजूज खापा ही है ते। ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੜ ਦੇਾਂਗੇ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੜ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅੱਛਾ, ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ खुश है?
ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बदतमीजी कर रहा है। कान पकड़ बाबा कान। ਹੈਲੋ ਜੀ। वो मेरे नहीं है। कान पकड़ बाबा। ਹੈਲੋ। ओए मुर्गा बन मुर्गा। ਮੁਰਗਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ? कान पकड़ बाबा। पकड़ो कान पकड़ो कान। ਹਲੇ पिछूचो। हवेली में गंदे मंदे काम नहीं करने हैं। हवेली की- साईं को बुलाओ, साईं को। ਚਲੇ ਜਾਈਏ। लाला साईं केड़े? ਛੋਟੇ ਸਾਈ। सलाम साईं। सलाम साईं। सुनाइए अपना साईं, एक बात पूछूं। साईं ये इतने सालों के बाद आपकी खानदानी पग बाहर आई है हवेली से, खैर तो है, ये गोट की कोई लड़की तो नहीं पसंद आ गई? अरे नहीं बाबा। आओ भैया, कहना नहीं बाबा। नहीं हाँ, जी जी। लड़की हमें नहीं, हमारे बाबा साईं सरदार दोस्त मोहम्मद चांडियो को पसंद आई है। बाबा हमारे बाबा ने हमारी जिंदगी में हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब जवान औलाद का भी तो फर्ज बनता है ना बाबा कि अपने बूढ़े बाप की ख्वाहिश को पूरा करे, हर सूरत करे। वाह साईं वाह। अच्छा साईं, एक बात पूछूं? पूछो। आपको जवाब देना? जी साईं जी। साईं मजाक साईं। मिठा साईं। मजाक साईं। ये जो आठवीं बीवी बन रही है साईं की, ये कौन खुश नसीब हो गए? हमारी खानदानी रस्म के मुताबिक ये पग उस घर के दरवाजे पर जाएगी जिसकी लड़की वडेरा दोस्त मोहम्मद चांडियो को पसंद आती है। पहला घर मेरा, मेरी बुढ़ी ने नहीं रगड़न लगे। मेरी सर्दियां ना बर्बाद कर देना साईं। ਓਏ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਆ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਇੱਥੇ। ये पग हमारे हारी गुलामों के दरवाजे पर ले जाओ अमीर बख्श। सरकार ये सब क्या है छोटे सरकार? अरे इसको गौर से पहचानो बाबा, गौर से। ये हमारी खानदानी पग है, पग। गुलामू तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि घोट में कोई भी लड़की जवान हो और खूबसूरत भी हो, और हम वडेरों में से जिसको पसंद आ जाए हमारी ये पग उसके दरवाजे पर भेज दी जाती है। अरे बाबा, जिसका मतलब ये होता है कि वो लड़की हमारी हो गई है। गुलामू, हमारे बाबा साईं को तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है। इस पग के बदले इसे हमारे हवाले कर दे। मैं इन फजूल रस्म रिवाजों को नहीं मानती। मैं अपनी मर्जी की खुद आप मालिक हूँ। मर्जी तो घोट में चिड़िया की भी नहीं चलती, तो तू क्या चीज है? औरत को चिड़िया से भी ज्यादा कमजोर समझते हो तुम लोग, जिसने 9 महीने अपनी कोख में जगह दी, पैदा किया, पाला पोसा, जवान किया, और उसी औरत के आगे ढोल जमाते हो। जबान बंद कर अपनी, जबान बंद कर। अरे क्यों चीखती है, कर्मो चली क्यों चिल्लाती है? अरे यहाँ तेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। पत्थर के लोग बसती है इस बस्ती में। अरे जब तुझे पता है कि तेरा चीखना चिल्लाना इसी कोर्ट के किसी कोने में दफन हो जाएगा, तो क्यों चीखती है? क्यों चीखती है तू? क्यों चीखती है? क्यों? अरे बाबा क्यों नहीं चीख सकती है? अरे क्यों नहीं चीख सकती है? अरे बाबा ये भी उसी आदम की बेटी है जिस आदम के ये बेटे हैं बाबा। अरे ये सरदार लोग अपनी बहू बेटियों को तो जन्नत की मखलूक समझते हैं बाबा, तो ये लोग हमारी औरतों को भेड़ बकरियां क्यों समझते हैं बाबा? क्यों समझते हैं भेड़ बकरियां? अरे इसकी तरफ कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता है। अभी इसका जवान भाई जिंदा है बाबा साईं। वाह बाबा वाह, आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया कि गोट में ऐसे नमक हराम भी पैदा हो गया है बाबा, जो सरदार की आंखों में आंखें डाल के बात करता है बाबा। और गिला तुम पे नहीं है साईं, गिला तो अपनी औलाद पे है कि हमारा जवान बेटा खामोश खड़ा तमाशा देख रहा है। गोट में आवाज बुलंद जो होती है उसको खत्म कर दिया जाता है बाबा। कत्ल करते इसको, कत्ल करते बाबा। इसको अभी इसका अंजाम दिखाता हूँ बाबा साईं, अभी इसका अंजाम दिखाता हूँ। माफ कर दे। अरे
पागल हो गया है, ये चरिया हो गया है। अपनी कोर्ट से बाहर का हटा खा लिया इसने कहीं से। अरे अपनी औकात भूल गया है। अरे ये भूल गया है कि हमारी लोग अपनी मर्जी से नहीं, वडेरों की मर्जी से जीते हैं सरकार, वडेरों की मर्जी से। अरे हम क्या, अरे हमारी तो बहू बेटियां भी आप वडेरों की मर्जी से जीती है। ना बड़े भाई खुदा का वास्ता है, ना मैं बड़ा बाप, मेरा एक ही बेटा है, खुदा का वास्ता है सरकार, मेरे बेटे को माफ कर दे, ना मेरे बुढ़ापे का चेहरा है सरकार, खुदा का वास्ता। अरे रोना धोना बंद कर गुलामू बाबा, बंद कर रोना धोना। अगर चाहता है कि तेरे बेटे की जान बख्श दूं और तेरी भी जान बख्श दूं तो एक बात कान खोल के सुन बाबा। चांद की 14 तारीख को हम दूल्हा बन के तेरे दरवाजे पे आएगा बाबा। अपनी बेटी को दुल्हन बना के हमारे साथ रुखसत कर देना बाबा। और अगर उस दिन कोई जरा सी भी ऊंच नीच हुई बाबा तो तू जानता है, मुझसे बेहतर जानता है कि ऊंच नीच का क्या नुकसान हो सकता है बाबा, क्या नुकसान हो सकता है। चलो बाबा। वो तेरी को भैन जवान है। मिठा सही जी आका। सुने पग जी दे घर ते के जांदी तो रिश्ता मिलदा। आहो तू अंदर चल, मैं आऊंगा। जालमा अख तेरी बड़ी बदमाश वे, जालमा अख तेरी बड़ी बदमाश वे सोने। आ वेख ला सरदार दी कुड़ी नूं भी पता चल गया, वो भी आ गई हो इत्थे हुण। हुन इंटरनेट खड़के ही खड़के। सलाम बीबी जी। सलाम बीबी जी। सही, आप तो कराची पढ़ने वढ़ने के लिए गया था, इधर क्या लेने आ गया अचानक? हमें अपने पुरखों की हवेली में किसी को पूछने और किसी को बता कर आने की जरूरत नहीं है। फड़ लईए कल्ली हैगी है। होया होए भी साडियां बुढ़ियां नूं वावा मंडदे ने फड़ के। सही कहन दिया, रल के पै जाने आ, पर्चा तेरे ते करा देंगे। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये दोपहर की रोटी है जी। ये आपकी खानदानी पग है सही। हमारी खानदानी पग आपके हाथ में क्या कर रही है? ये गंदी हो गई है, पता नहीं आपके वालिद साहब इसके साथ पूंजा पांजी करते रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबा सही को जुकाम हो गया होगा। हाँ, वो सिंधी में निच्छा मारे, जी सही पिचू, जी सही पिचू, वो पूछते हैं। लाइए इधर दीजिए हमारी खानदानी पग, इसे हम खुद धोएंगे। नहीं बीबी जी नहीं, तुसी ते अज तक अपनी कोई चीज आप नहीं धोती। ये क्या बकवास कर रहे हैं? साईं उसके कहने का मतलब है कि बचपन से लेके आज तक आपकी चीजें हम ही तो धोता है। ये फीटर, ये बेबी, ये चूसनी वगैरह। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, अपनी चीजें खुद ही धोता है। हाँ, लग रहा है। ये देखे ना, ये पैर और हाथ धोए हैं। हमें दीजिए ये हमारी खानदानी पग, इसे हम खुद धोएंगे। अरे आप क्यों धोएंगी? ये मदारी की बेटी धोएगी। हाँ जी, जिन्हें लबेड़ी है। हाँ। कौन? ये रेशमा। रेशमा। बुलाओ रेशमा या जो भी है, आकर ये पग धोए। बुला, तेरा बोल पाटा बुला, चल। अरे रेशमा, अरे रेशमा, रेशमा कटन करा ली। ये रेशमा है? नहीं जी। कौन हो तुम? बाबा पूरा कोट जानता है, गुल्लू है बाबा। कौन गुल्लू? बाबा तुम गुल्लू को नहीं जानता है? नहीं। गुल्लू इधर पूरी कोट का काम करने वाला मशहूर आदमी है बाबा। इधर हर औरत का काम गुल्लू करता है। अपनी बेगम में जितनी भी इधर है, हम उनका नौकर है और हर बेगम का काम गुल्लू ही करता है बाबा। अच्छा, तो जो गोट में इतना मशहूर है, तुम वो गुल्लू हो? हाँ बाबा, गुल्लू। वही गुल्लू? गुल्लू गुल्लू। अच्छा, मीठा साई जी, इधर से। बेटा माँ। मीठा साई जी आका। ये जो गुल्लू है ना, हाँ। ये मुझे पसंद आ गया है। मुझे ये गुल्लू चाहिए। ये चाहिए? हाँ। ओ बगैर ता केड़े मकनातीस वाले कैप्सूल खाना।
ओए वो कहती मेरे गुल्लू चाहिए है। तो बाबा अपने भाई को उसको खुसूसियत बताओ बाबा। कोई हमको पसंद कर रहा है बाबा, उसको बताओ ये गुल्लू। ये तो ड्रामे च लिखे नहीं जड़ा इंज करन दे ना। बाबा मैं तुमको सही बता रहा है। हां दूर होके दस की दसा उन्हें जाके। उसको बोलो गुल्लू बहुत आला आदमी है। अच्छा गुल्लू सारा काम कर लेता है। ठीक है छोड़ो। अरे साईं ये तो बदनामे जमाना है गोट में पूरे में, इसको चवल को मुंह ना लगाए आप बाबा। बदनामी जमाना है। हाँ। हमें तो बदनाम लोग बहुत अच्छे लगते हैं, हमें यही गुल्लू चाहिए। ओ बगैर दा केड़िया बगला चूसना तू। साला ब्याह शादी है। ए लाला जेड़ा जिन्नू करो दो बारी सालन नहीं मिलता साडी जान नू रोना आ जांदा है। हाँ जी बाबा उसको अपने यार की खुसूसियत तो बताओ बाबा। क्या वो लग रहा है उन पे रह गया है बाबा। हाँ उसको बताओ कि हमारा दोस्त बड़े बड़े काम कर लेता है। ओके तेनू अगे भी क्या परा होके मैं दसना। अरे बाबा गोट की कोई लड़की नहीं छोड़ी इस नैश ने। कोई लड़की नहीं छोड़ी। हाँ कितनी क्वालिटियां होंगी इसमें। हाँ। मुझे यही गुल्लू चाहिए। ओ बगैर दा केड़ी कैचअप। साला वे खराब गड्डी दा वैपर जिहा बन जांदा। गल सुन मेरी वो कहन डई है फिर कहंदी मैनू गुल्लू चाहिए। बाबा तू खुसूसियत तो बयान करो, उसको बोलो कि हमारा यार गलाबाजी लगाकर खीरा भी पुट लेता है। मैं बता जरा उठाकर बताओ, उठाकर बताओ, उठाकर। ये लो भाई, ये लो भाई। लानत तेरी बाबा, ये तो कलाबाजी ला के खीरा पूट लेता, साथ 2 टमाटर भी खींच लेता है। अच्छी बात है ना, सलाद फ्री में आएगी घर पे। मुझे यही गुल्लू चाहिए। ओ तेरा बेड़ा तरजे खा। ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਤੂੰ ਜੰਮੀ ਜਾਣ ਦੇ साला माई डे बे हुन की करना ही। बाबा उसको बताओ कि बड़ा आला आदमी है, उसको बोलो कि ऐसा काम करता है, मेरी बेगम के पास भी यही होता है। ये गल ते हां पर कहते मैं सही कहता हूं बाबा, इसका खेड़ा छोड़ दो। मुझे नहीं पता, मुझे यही गुल्लू चाहिए मिठा सही, मुझे नहीं पता। चलो तुसी फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? हाँ वो क्या करते रहे? ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਓ। वो कैसे? ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਫੜ ਕੇ ये तो ठीक है, मैं इसकी इज्जत लूटूंगी। लेकिन मिठा साई हाँ। ये हाँ तुम करना, इज्जत मैं लूटूंगी। हाँ ठीक है। चलो। ਓਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ पे लग गया। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓਗੇ। मैं क्यों ना जाऊं? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ओए, हटो यहाँ से। हमने तुम्हारी इज्जत लूटनी है। हेलो, हमने इज्जत लूटनी तुम्हारी। क्यों नहीं, हम लूटेंगे। बाबा सही वो तो बचपन में लुट गई है। मिठे, वो तो कह रहे कि वो तो बचपन में लुट गई, अब क्या करूं? साईं हमें जूते मारे गए। क्यों? ये गलती हमसे हुई है। बाबा एक होता बाबा अब समझा है। मिठे, हाँ। घर की बात है घर में रहे, ये यहाँ ही रहे। किसी को बताना ना। ठीक है। शुरू शुरू। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, वे तेरी का तो लुटनी है नहीं। अरे ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਬੀਬੀ ਜੀ। क्यों? ਬੀਬੀ ਜੀ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਛੁਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ, अच्छा, ਕੱਟਿਆ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ना ना तुम छुरी, ना तुम खरबूजा। हटो, इज्जत लुटो, लमे पो, लेटो। बाबा खड़े की लूट लो। मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो बाबा फिर अपने जो वाला तरीके कार है वैसे आओ। क्या है? लेटो, जो तरीका क्या होता है बाबा? मतलब लेटो ना। बल्कि पहले हमें तरीका बताओ बाबा। तुम्हें जैसे नहीं बता, लेटो। लेटता है बाबा। ओए बाबा, अरे बाबा कौन बैठा है, कौन बैठा है? अरे बाबा उधर भी कोई गुल्लू ही बैठा है बाबा। ओए हेलो बाबा, हमको नहीं पिछले को समझाओ बाबा। चलो, बात सुनो, इज्जत हमने लूटनी है।
बहुत अच्छे बाबा, बात तो वही हो गया है, उधर किधर अब हो गया है बाबा ये हमारी। नहीं लुटवा रहे इज्जत मिट्टी, क्या करो? आप साईं हमारी लूटे। ये क्या तरीका है? जा साईं, यही चल रहा है आजकल। इज्जत लूटना है। ठीक है साले इज्जत लटवा तू तो मौत का खूह दिखा रहा है। की है? नहीं बीबी, क्यों नहीं? अल्लाह का वास्ता दे ना जाओ, क्यों ना जाऊं? ਇਹਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੀ। हाँ। मैंने इज्जत लूटनी है। ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ, हाँ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਲੈ ये कौन सा हथियार है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ये वहाँ चलेगा? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ। बदतमीज, पता नहीं क्या किया हुआ है। ਇਹ ਪਾਵੇ ਖਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੁੰਜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। इज्जत लुटवाओ अपनी। बाबा अब नहीं लुटवा सकता। ये नहीं लुटवा रहा, इसमें ऐसे ठीक नहीं होना। मैं बताती हूँ तुम्हें। अब आओ ना जरा। चलो। तेरी पुप्पी जीतो पाकिस्तान से निकलनी तेरी में। गोली मारूंगी तुम्हें, सीधी हो जाओ। अच्छा जी, कितना चालाक है, चाहता है गोली गायब हो जाए। बहुत अच्छे। बाबा इधर पहाड़ों में फायर कर रहा है। तुम इज्जत लुटवाओगे। बाबा मैंने नहीं इज्जत तुम्हारी इज्जत आज ही लूटी जाएगी। बाबा मर्द के पास इज्जत ही होता है, तुम्हारी मेहरबानी बाबा, नहीं तो इज्जत ना हो तो फिर उसके हाथ में कुवाड़ी होता है। अरे किस बात का चोर है बाबा? अरे हमारी बहन रईसा शादी आई है हवेली में, अधी आते ही बंदूक उठा ली। बाबा खैर तो है, इतना गुस्सा? ये गुलामों का बेटा औकात से बाहर हो गया है अदा साईं, इसको जरा सबक सिखाइए। ए क्या गुस्ताखी की है तूने अदी की शान में? ए बोल, बोलता क्यों नहीं? इसने हमारा हुक्म मानने से इनकार किया है। ये तेरी ये जुर्रत, तूने अदी सैन का हुक्म मानने से इनकार किए? बाबा जो हुक्म वो लगा रहा है उसे डेले बाहर आ जाता है बाबा। बाबा पता किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है। बाबा कहता है वो ए क्या बकता है? बबली बकता है वो जो कहेगा एक के बाद कहेगा बाबू वैसा ही करेगा बाबा। वैसे ही करेगा, वो साले मरना ही। बाबा रोज रोज से मरने से एक दवाई मरो। ए मिठा साई और नमकीन साईं। ये बता, गुल्लू ने अदी सैन का कौन सा हुक्म मानने से इनकार किए? अबे बाबा ये यदि आपकी है ना जो वो उसको पसंद करती है गुल्लू को अदी पूरी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अदी सैन सरदार दोस्त मोहम्मद चांडियों की बेटी को एक मामूली हारी का बेटा पसंद आ गए। अदीस की औकात तो देख और अपनी इज्जत मकाम और मर्तबा देख। किस औकात की बात करते हो अदा साईं? इज्जत मुकाम मर्तबा अना इस दुनिया में होती है। इस दुनिया से जाने के बाद कब्र में सबकी औकात एक बराबर हो जाती है। क्या हो गया अगर सरदार की बेटी को एक मामूली हारी का बेटा पसंद आ गया तो? बाबा साईं को पता चला? अरे बाबा हमारा बेटी आ गया शहर से और हमें पता ही नहीं है, लगता है इसको हमारा 8वीं शादी का पता चल गया है बाबा। अरे मिठा साईं, जी साईं। तुमको सिर झुका के खड़ा है बाबा, कहीं गुलामों की बेटी ने इनकार तो नहीं कर दिया बाबा? हम आपकी 8वीं शादी नहीं होने देंगे बाबा साईं। कैसे नहीं होने देगा बाबा? हमने तो पहले तेरे भाई को बोला था कि हमारी 8वीं शादी की हमारी बेटी को कानो कान खबर ना हो। ये माना ही नहीं पागल, क्योंकि ये 4 जमातें पढ़ के है, ये हमारी शादी में टांग अड़ाएगा बाबा। क्या जरूरत पेश आ गई आपको शादी की? अरे बता सरदार दिलावर, जरूरत पड़ जाता है। खालस देसी घी खाता है, दूध पीता है, शहद पीता है, और तो और रोज के 2-3 किलो रगड़ जाता है बाबा, जरूरत पड़ जाता है। पहले से ही 7 बीवियां हैं आपकी। सब फटर हो चुकी हैं बाबा, किसी काम का नहीं रहा, अंजर पंजर हिल गया उनका। तुम्हारी जो बड़ी माँ है उसका तो गोडों में खचल पचल का आवाज भी आता है। जब औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप को अपनी नहीं उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अदी तेरी पागल हो गई है भाई। अरे हम पूरी गोट को चलाता है, हम कोई पागल है? अपनी शादी के बाद
अपने जवान पुत्र का ब्याह करेगा बाबा, जवान पुत्र का। हम दिलावर की बात नहीं कर रहे बाबा साईं, हम अपनी शादी की बात कर रहे हैं। अपनी शादी का बाबा? किससे करेगा शादी? हम हारी गुलामों के बेटे से शादी करेंगे। अरे सुन रहा है दिलावर साईं, अरे सुन रहा है? अरे तू तो कहता था तालीम इंसान को शऊर दे देता है, इधर तो मामला ही गड़बड़ हो गया है। अरे तुम्हारी यदि का दिमाग पागल हो गया है। अगर ये हारी के बेटे से शादी करेगा तो सरदार दोस्त मोहम्मद चांडियो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा बाबा, इसको समझा। पिछली 7 पुश्तों से गोट में सिर्फ सरदार का हुक्म चलता है, किसी बहू बेटी का नहीं बाबा। अगर ये नहीं मानते तो इस हमारी बागी बेटी को और इस हारी के बेटे को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल करते बाबा, कत्ल। और पूरी गोट में मशहूर करते कि कारोकारी के जुर्म में सरदार ने अपनी बेटी और हारी के बेटे को कत्ल कर दिया, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी गैरत पे समझौता नहीं किया बाबा, नहीं किया। कत्ल करते सरदार दिलावर, कत्ल करते। बाबा साईं, अधीसेन ने जो जुर्म किया है उसकी सजा तो मौत बनती है, मगर कुछ दिनों बाद आपकी शादी है बाबा साईं, और शादी से पहले हवेली से जनाजे उठना अच्छा शगुन नहीं। मैं कहता हूं इन दोनों को कैद खाने में डाल देते हैं। आपकी शादी के बाद इन दोनों का अंजाम पूरा जमाना देखेगा। मिठा साईं, जी साईं, ले चलो इनको कैद में। ठीक है साईं। खबरदार, गोली मार दूंगी। सरदार की बेटी हूँ, सरदारों की तरह ही फैसला करूंगी, और अगर कोई बीच में आया हराम मौत मरेगा। आपने तो अपना फैसला सुना दिया बाबा साईं, अब मेरे फैसले का इंतजार कीजिए। अरे बाबा सही हैं? अरे हमारे दूसरे लोगों माने में भी ऐसा बात नहीं है बाबा। वो उधर सरदार की बेटी कहता है गुल्लू से शादी होएगा बाबा। इसका भी काम हम करता है, इसका भी हम करता है। तू सारा जड़ी कंजरा दी 1 1 2 2 बने नहीं क्या हम करता है? हाँ? बाबा कोई रास्ता बदल के करी? कोई रास्ता निकालो बाबा सही। हमने तो वो कहता है इसको कत्ल कर देना है, हमने तो कुछ देखा भी नहीं है, हमने आपका जनाजा भी देखना है बस सही। पुत्र तू वाले कुछ भी नहीं देखा जो मैं तेरे को हाँ मत मर जाएगा। हम कोर्ट छोड़ कर जा रहा है, हम करेगा ही नहीं बाबा। जबर लाओ मुझे कहना रे मुर्दा। मुबारक साईं, मुबारक। मेहरबानी बाबा, मेहरबानी। अरे गुल्लू साईं, तुमको भी मुबारक हो बाबा। खुश नसीब है कि तेरी बेटी सरदार दोस्त मोहम्मद चांडियो का बीवी बन रहा है। अब सारी पुश्ते तेरी ऐश करेंगी, क्योंकि हमारी जो पग है बुजुर्गों की, वो जिस दरवाजे पे चली जाए बाबा, उसका मुकद्दर समझ जाता है, मुकद्दर। ये हारी के बेटे बेटा साईं, ये हारी के बेटे के हाथ में क्या है बाबा? ये हमारे सर की चादर है बाबा साईं। तुम्हारे सर का चादर एक हारी के बेटे के हाथ में, इससे सर ढांपो बाबा। सरदार की बेटी का सर नंगा अच्छा नहीं लगता बाबा। आप भी पगड़ी से अपना सर ढांपिए बाबा साईं, क्योंकि एक सरदार का भी नंगा सर अच्छा नहीं लगता। तू कहना क्या चाहती है अधीसेन? अपने सर की चादर यूसरे बाजार क्यों ले आई है? रस्म है हमारे बड़ों की, हमारे वडेरों को अगर गोश्त की कोई लड़की पसंद आ जाती है तो अपने सर की इज्जत यानी अपनी पग उसके दरवाजे पर भेजकर उसको अपना बना लेते हैं। मैं भी उन्हीं सरदारों का खून हूँ, उसी तरह करूंगी जिस तरह मेरे बाप दादा करते आए हैं। मैं अपने सर की चादर गुलामों के दरवाजे पर ले आई हूँ बाबा साईं। मेरे सर की इज्जत के बदले मुझे गुलामों का बेटा दे दीजिए। बकवास
बस बंद कर अपनी बकवास। इसको समझा सरदार दिलावर, पिछली 7 पुश्तों से किसी बहू बेटी की जरूरत नहीं हुई कि सरदार के सामने ऊंची आवाज में बात करे, तो ये क्यों करती है बाबा? 7 नस्लों से जुर्रत इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके पास तालीम नहीं थी। आपने उनमें शऊर पैदा ही नहीं होने दिया। आपकी 7 नस्लों से गूंगी औरत पैदा होती रही है, गूंगी औरत, और उस गूंगी औरत के बोलने की सजा आप लोगों ने मौत रखी है। लेकिन मैं गूंगी औरत नहीं हूं, मैं अपने हक के लिए बोल भी सकती हूं और लड़ भी सकती हूं। सरदार दिलावर, अरे सरदार दिलावर, अरे बाबा सुन रहा है अपनी यदि की बातें? अरे बाबा, इससे पहले कि ये बाबा पूरी गोट में फैल जाए, घर में बैठी गूंगी औरत वो भी बोल पड़े। बाबा, इस बागी बेटी को कत्ल कर दे बाबा, कत्ल कर दे बाबा इसको। नहीं बाबा सही नहीं, मैं आपके एक हुक्म पर दुनिया के हर शख्स को कत्ल कर सकता हूँ, मगर अपनी माँ जाई बहन को नहीं बाबा सही। अगर आज खुदा की जमीन पर उसके बंदों को बेगुनाह खून करूंगा तो रोजे महशर अपने सोने रब को कैसे मुंह दिखाऊंगा बाबा सही, कैसे मुंह दिखाऊंगा? आज अपनी सोनी धरती पर बनने वाली ये पाकिस्तान की जमीन पर हमने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो कानून बनाए हैं, क्या वो सही है बाबा सही? बताएं, क्या वो ठीक है? हम जानते हैं कि ये सब गलत है, कुछ ठीक नहीं, लेकिन बाबा एक खौफ है, खौफ। हमें डर है कि कहीं ये गोट का लोग हमें हमारा इज्जत करना ना छोड़ दे, कहीं हमारी इज्जत का शिमला सर से गिर के पांव में ना आ जाए, कहीं आसपास की गोट के लोग ये ना समझे कि सरदार कमजोर हो गया है बाबा। इसलिए 7 पुश्तों और 7 नस्लों से बाबा इस बहू बेटी का कत्ल करता आ रहा है अपनी मनमानी के लिए। लेकिन खुदा का वास्ता, एक गोट का सरदार होने के नाते हम आपसे हाथ जोड़ के एक इल्तिजा करता है बाबा, इन झूठी रस्मों को बंद कर दो बाबा, बंद कर दो इन झूठी रस्मों को। अगर सच्चा प्यार किसी से करना है बाबा तो वो अपने हकीकी रिश्ते और अपनी धरती से करो बाबा, धरती से करो, धरती से करो बाबा। बाबा, इसका मतलब है तुम्हारी बेटी को लेके जा सकता है? मेरी एक शर्त है। वो क्या बाबा? तुम्हारी इज्जत मैं लूटूंगी। बड़ा सरदार है। बाबा, तुम लूट लो चाहे हम लूट ले, होने वाले बच्चों ने तुम्हें अम्मी कहना है, अब्बा नहीं। बड़े सही और समझे।